Today we will discuss about the Mendel's law of genetics. As we know that the Mendel have proposed three laws of genetics. One is law of dominance. Second is the law of segregation, and third is the law of independent असॉर्टमेंट। तो तीन ये लॉ मेंडल ने प्रपोज किए थे अपने जेनेटिक रिसर्च के टाइम पर। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज द universal law. It is also known as the universal law. And the law of dominance and law of independent assortment are not universal, are not, because they fail by various experimental probes. So first, what is the law of dominance? Law of dominance की बात करते हैं। क्या था? ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। According to law of dominance, Mendel says that there is two allele for एक ट्रेट। किसी एक गुण के लिए दो अलील पाए जाते हैं किसी भी एक जीन में। हालांकि ये लॉ भी बाद में चेंज हो गया। देयर इज मैनी जीन्स विच आर कंट्रोल या ट्रेट्स करेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी अलील और नोन एज मल्टीपल अलील, जस्ट लाइक ब्लड ग्रुप। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोस्ट ऑफ जीन हैव टू अलील फॉर ए ट्रेट. And in the presence of one allele, one is, it has two forms, one is dominant and another is recessive. एक कैसा होगा? डोमिनेंट होगा और दूसरा कैसा होगा? रिसेसिव होगा। तो जब जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा, when did the dominant is present, the recessive would not show its effect. Like this, when the gamete is produced from this plants, recessive or dominant, the F1 progeny will be like this, and this is the hybrid F1, मतलब hybrid, or we can say that it is heterozygous. We call it heterozygous. We don't call it hybrid. We will call it heterozygous. So heterozygous in the presence of this dominant allele, this allele, the all plants F1 progeny is tall, so it masks the effect of this small allele. This is known as the law of dominance. Second, we will take the law of segregation and independent assortment. Both will be, can be explained with the help of डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने एक पी प्लांट के दो करेक्टर्स को लिया, एक तो उसके राउंड सीड और उसके राउंड सीड जो कि उस, और दूसरा उसका येलो पोल कलर,
ये दो करेक्टर लिए मेंडल ने, डोमिनेंट एंड one is wrinkled seed and green board color, it is taken as recessive. So round is like by this and yellow is denoted by this capital Y. Similarly, wrinkle is denoted by small r and green board color is denoted by small y. And this is the dominant plant and this is the recessive plant. The gamete formation is like this, R or Y. Like this. The gamete formation is like this, like this and like this. When these two are cross, the plant produce heterozygous, and this with F1 progeny is round yellow according to law of dominance. When the F1 offspring सेल्फिंग इज डन, जब इस F1 प्रोजेनी में हम सेल्फिंग करते हैं तो क्या होगा, वी हैव gametes like if this R is combined with this, then it will produce gamete like this RY. If this R goes with this, the gamete is produced like this. If this R goes with this, then the gamete is produced like this. And if this R goes with this, then the gamete is produced like this. So either this or either this. So these are the four type of gametes may be produced here. So here we saw that जब डोमिनेंट हमने लिया तो R के साथ कैपिटल Y आ रहा था और छोटे R के साथ छोटा Y आ रहा था, लेकिन जब अगली F1 फिर गई तो यहाँ पर देखो R के साथ छोटा Y भी आ गया और इस R के साथ बड़ा Y आ गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब अलेल फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पर जो अलेल हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस सेपरेशन को ही क्या कहा जाता है, सेग्रीगेशन। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो अभी तक चलता आ रहा है कि भाई ये होता ही है। वी प्रोड्यूस अ चेकर बॉक्स, सिमिलरली वी टेक अनदर आर वाई एंड आर वाई। If we produce a cross, then the gametes are like this, R, Y, Y. If this R capital, एक Y, एक Y. If the gametes are from this, the one R capital, one R small, and Y both are capital. And if we take this, the one R capital, small r, Y capital, and small y. If we take this R capital, Y capital, Y small, and we take this, so then R capital, Y both are small. If we take this to this, then R capital, R small, एक Y capital, small y. If we take this R
if we take this R R Y Y, if we take this R R Y Y, if we take this R R Y Y, R R Y Y, if we take this R R Y Y, R R Y Y, and R R Y Y, and R R Y, small like this. तो we found that जो Y कैपिटल हमेशा R के साथ जाकर के अपने आप को दिखा रही थी, यहाँ पर देखेंगे हम कि जब जैसे कि जहाँ पर आर वाई कैपिटल आ गया, दोनों एक आर कैपिटल हो और एक वाई कैपिटल हो, तो वो बीज होगा राउंड येलो। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कर करके। और जहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आ रखी है लाइक दिस, ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड। और वाई कैपिटल होने की वजह से कैसा हो जाएगा, ये येलो कलर का। तो देखो यहाँ पर राउंड के साथ येलो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर रिंकल्ड के साथ भी येलो आ गया। तो दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो किया है। और इस तरीके से अगर जो ये एक अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं तो दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इससे प्रूव होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि ये दोनों खुद को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं। दोनों जो गुण हैं, करैक्टर हैं, ट्रेट हैं, जो कि अलग अलग अलेल के द्वारा, जीन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को शो कर रहे हैं। तो मेंडल के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन अभी तक यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इट इज़ फेल्ड बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज लिंकेज। लिंकेज इसको फेल कर देती है। एंड सिमिलरली लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो फेल्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। Supplementary gene, it is also failed by कोडोमिनेंस, जहाँ पर एक तीसरा करैक्टर निकल के आता है, कोडोमिनेंस। अगर जो 12th की बात करें तो आगे जा कर के हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो कोडोमिनेंस जो प्रोसेस है, ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल कर देता है। क्योंकि देखो अपना पीछे, अगर जब हमारी पिछली वीडियो देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोडोमिनेंस होने पर एक तीसरा करैक्टर डेवलप हो रहा है, जबकि मेंडल कह रहा था कि जब जब डोमिनेंट होगा तो तब तक रिसेसिव मास्क हो जाएगा। लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं हुआ, जहाँ पर एक तीसरा करैक्टर पिंक कलर का फ्लावर आ गया था। तो आप पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो इससे देख सकते हैं उसके लिए। तो ये लॉ है मेंडल के, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। में से एक लॉ पेपर में हर हाल में ही पूछा जाता है। अगर इसकी बात करें, इसकी रेशो की, डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो इसकी रेशो अगर जो इन सब को देखें तो राउंड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन और राउंड ग्रीन, इस तरीके से हम इनके 4 कांटे बनाएंगे। तो ये आएंगे राउंड येलो के 9, रिंकल्ड येलो के 3, रिंकल्ड ग्रीन का 1 होगा, राउंड ग्रीन के 3 और रिंकल्ड येलो का 3। ये आ जाएगी फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो तो वो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हैं। यहाँ तो आपको मेनली देखना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ईच अलेल शोज इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखना है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच अलेल इज सेपरेटेड, एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखना है कि जब भी डोमिनेंट अलेल प्रेजेंट होगा तब रिसेसिव खुद को शो नहीं करेगा, लाइक दिस। तो डैट इज़ टुडेज टॉक। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को देखते रहें। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम डालेंगे। अभी फ़िलहाल जेनेटिक्स के छोटे छोटे टॉपिक डाल रहे हैं।